Hello friends, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our new chapter that is Supreme Court. Before solving the MCQ questions of Ghatna Chakra, let me give you a brief idea about the various important things in this chapter that is the appointment, qualifications, oath and removal and jurisdictions of Supreme Court. Now, ये मेरा explanation का part will be of 2 to 3 minutes, maximum 4 minutes, and then you will be able to solve most of the questions that have been asked in the past few years. Now, the in the Indian judicial system, we have an independent, independent plus integrated judiciary. Now, independent judiciary का क्या मतलब है? Means the executive has no role to play in the judiciary. This is given in the directive principle of state policy, article number 50, that the executive is separate from the judiciary. An integrated judiciary means there is a chain and hierarchy of judiciary in our country, with Supreme Court being on the top, High Court being on the lower level, and the lower courts beneath all. अगर कोई इंसान लोअर कोर्ट में केस हार जाता है, then he will appeal to the High Court, and if he is not satisfied with the decision of the High Court, he can move to the Supreme Court. Also, Supreme Court is the upholder of fundamental rights. How? Through Article 32, through which the Supreme Court can issue writs in our country. Now, the writ jurisdiction is also expanded to the High Court. Article 2 to 6 में High Court की writs jurisdiction की बात की गई है. Now, let's move to our main topic, that is Supreme Court. Supreme Court is given in Part 5 of the Constitution. Articles ranging from 124 to 147 में हमारे Supreme Court की बात की गई है. Now, let's move to the next topic, that is appointment. The appointment of Chief Justice of India is done by the President, and the appointments of other judges is made by the President on advice of Chief Justice of India. Also, one question related to the jurisdiction is that the Parliament has power to increase the jurisdiction of Supreme Court, but it cannot diminish it. मतलब कि जो पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है बट उसको डिक्रीज नहीं कर सकता है. एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ जजेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय द पार्लियामेंट. प्रेजेंटली देयर आर 34 judges in the Supreme Court of India. Now let's move to the next topic, that is qualification. So 3 qualification है. The first one being he must be a citizen of India. Second one is he must be a judge of High Court जिन्होंने 5 साल प्रैक्टिस किया हो, और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट जिन्होंने 10 साल प्रैक्टिस किया हो. एंड द थर्ड वन बीइंग इन द व्यू ऑफ प्रेसिडेंट the person who is to be appointed should be a distinguished jurist. Okay, so these are the qualifications that are needed to be the judge of Supreme Court. Now, let's talk about the oath. The oath is taken before the president. And now about the removal. The removal of the judges of Supreme Court is not mentioned in the Constitution, but it is governed by a separate act, that is Judges Inquiry Act of 1968. Also, the judges of the Supreme Court are removed by the president, but directly president remove नहीं कर सकते हैं.
there has to be an address by the parliament on this issue, which is to be passed by not less than 2/3 of member present and voting. ठीक है, पार्लियामेंट जब एड्रेस करेगा, यस जज हैज टू बी रिमूव, देन द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस कह रहा हूँ, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ऑल्दो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट, ही डज नॉट हैव द पावर टू रिमूव एनी जज बाय हिज ओन विल. ऑल्सो अभी बताया मैंने, द रिमूवल प्रोसेस इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. नाउ लेट्स मूव टू द जुरिसडिक्शन पार्ट. सो द सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है, सबसे पहली ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. ओरिजिनल मतलब सोल एक्सक्लूसिव राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के टू डील ऑन दीज मैटर्स. इट इज मेंशन इन आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें 3 तरह के डिस्प्यूट आते हैं. डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेंटर और one or more state, center and one or more state. The second one being center and any state on one side versus one or more state on other side. ठीक है. The third original jurisdiction में आता है 2 or more states. सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव राइट है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का. सेकेंड टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन इज दैट ऑफ रिट्स. रिट्स की जुरिसडिक्शन है. ये रिट्स की जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226, अंडर विच 5 types of writs can be issued. First one is habeas corpus, second one is mandamus, third one is prohibition, fourth one is quo warranto, and fifth one is certiorari. Third type of jurisdiction is appellate jurisdiction. Now appellate jurisdiction का आर्टिकल है 132 and 133. Fourth one is advisory jurisdiction. So this advisory jurisdiction is mentioned in article 143. इसमें 2 केसेस बनते हैं. The first one being कि जब प्रेसिडेंट सीक्स एन ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहला होता है और एनी लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई फैक्ट है इसके ऊपर. एंड द सेकेंड वन इज एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट है रिगार्डिंग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले का अगर कोई लॉ है एंड उस पर कोई डिस्प्यूट है, या कोई कन्वेंशन है, या ट्रीटी है, या एग्रीमेंट है. ठीक है. इन केसेस में भी प्रेसिडेंट सीक्स एन एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. सो फर्स्ट केस में जो मैंने बताया, दैट फॉर ए लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू गिव एडवाइस. ठीक है. बट अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और अरेंजमेंट इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई एंड इट मस्ट गिव एन ओपिनियन. ऑल्सो एक और है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 129. So with this we have covered the basic part of Supreme Court. Now let's straight away move to the questions and solve the questions regarding Supreme Court, and let's see हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. Now the first question is, the Supreme Court was inaugurated in India in 28th January 1950. हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देयर वाज अ प्रोविजन फॉर फेडरल कोर्ट. लेटर सुप्रीम कोर्ट हमारी बनी थी 28 जनवरी 1915 को. नाउ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटली देयर आर 34 जजेस. अभी मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन 1992 में पूछा गया है, ये वेग है आपके हिसाब से. प्रेजेंटली देयर आर 34 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 33 जजेस आज के टाइम पे. एंड ऑल्सो पार्लियामेंट हैज द सोल पावर टू इंक्रीज द जुरिसडिक्शन एंड नंबर ऑफ जजेस. करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ 34.
ये भी क्वेश्चन स्ट्रेंथ पे है। द सुप्रीम कोर्ट of in India was established by the Indian Constitution and it is established under Article 124. Not correct statement हमें पूछा है about the Supreme Court. First one is Supreme Court was constituted in the year 1950. Supreme Court is the highest court of appeal in the country. True. Supreme Court can hear from any high court and tribunal except court martial. No, this is wrong. सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, यहाँ पे कोर्ट मार्शल के रिगार्डिंग केसेस भी सुने जाते हैं, दैट इज वाई सी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, इट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस राइटिंग a letter to the president. See all these questions we have already covered in, अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको 3 से 4 मिनट का, उसी से अभी तक के क्वेश्चंस हैं। Now the appoint, who appoints the judges of Supreme Court in India? The President. What is the retirement age of the judges of Supreme Court? So Supreme Court के judges की retirement age है 65 years, but it is not mentioned in the Constitution. हालांकि हाई कोर्ट के रिटायरमेंट की जजेस है, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर्स। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, एक फैक्ट भी है जो आप भूल सकते हो। तो याद रखना हाई कोर्ट के जजेस की 62 ईयर्स एज है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 ईयर्स एज है। A judge of the Supreme Court may resign his office by writing to the President. How can a judge of Supreme Court be removed? By the will of Chief Justice? No. By the President? Yes. By the President होता है, but on the recommendation of Parliament. That is why D is right. B गलती से सही मत करके आना, क्योंकि प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन चाहिए होती है by the Parliament. A judge of the Supreme Court can be removed by the President after an impeachment by the Parliament. नाउ ये आईएएस 2019 का क्वेश्चन है, देखते हैं। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एज द जजेस इंक्वायरी एक्ट। सी, इट कैन बी रिजेक्टेड, ठीक है। 50 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए, एंड इट इज अप टू द स्पीकर टू डिसाइड ऑन द मैटर कि हमको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट has the constitution does not ensure or says any provisions regarding the removal of the judge of supreme court. This is governed by the judges inquiry act. तो ये क्वेश्चन जजेस इंक्वायरी एक्ट के थोड़ी सी डिटेलिंग में जाके पूछ रहा है आप, ठीक है। सेकंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने रिमूवल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताया है। तो देखो यहां से हम सेकंड स्टेटमेंट स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर देंगे। Now the details of the process of impeachment of the judges of the Supreme Court are given in the Judges Inquiry Act. Yes, I have told you this. If the motion for impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house by not less than two-thirds of the total member of that house present and voting. This also I have told you in the explanation. That is why हमारा 3 and 4 is right here. Question number 16. Age of retirement of the judge of Supreme Court is, it is 65 years, and High Court के judges की age है 62. The age of a judge of Supreme Court of India shall be determined by the authority and in such manner as Parliament may provide. अभी मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज है that is determined by the and any provision regarding the authority is determined by the parliament. But ये जो क्लॉज था ये कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था? इट वाज थ्रू द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Salaries and judges of the Supreme Court are determined by, these are determined by the Parliament. What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? While appointing to the judges of the Supreme Court, the President of India has to consult the Chief Justice. Yes, I have told you, the statement is correct. The judges of Supreme Court can be removed by the Chief Justice of India only. क्या ये सही है? बताओ मेरे को। सही नहीं है ना। I've already told you in the explanation part कि चीफ जस्टिस कैसे हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा पाएगा, वो भी पार्लियामेंट उसको रिकमेंड करेगा तब। तो सेकंड हम स्ट्रेट अवे यहां से एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट वन इज राइट, तो ऑटोमेटिकली हमारा 1 and 3 आंसर आ गया।
हालांकि एक बार थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी हम देखते हैं. द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द पावर टू वोट. यस, दिस इज राइट. ऑल्सो जो सैलरीज of the judges of high court है that is charged on the consolidated fund of state. But जो पेंशन होती है ना हाई कोर्ट के जजेस की, that is charged on the consolidated fund of India. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 266. ठीक है. एंड 267 नंबर आर्टिकल है इज ऑफ कंटीजेंसी फंड. कंटीजेंसी फंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The judges of Supreme Court after retirement are permitted to carry on practice before none of the courts. The Supreme Court judges or High Court judges are debarred from holding any post after the retirement. The acting Chief Justice of the Supreme Court is India is appointed by President. Which of the following types of judges can be appointed in the Supreme Court of India? Ad hoc judge appoint करते हैं, हमारे president appoint करते हैं. ठीक है. जिनको कि रिकमेंड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एडिशनल जज का कोई क्लॉज नहीं है. दैट इज वाई ए इज 1 एंड 2 इज फॉल्स. द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. With reference to Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President. Yes, this is true. A High Court of India has the power to review its own judgments as the Supreme Court does. Yes, High Court के भी पास power है to review its own judgment. Question 25 है, the judges of Supreme Court of India are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. Ad hoc judges are appointed in the Supreme Court when there is no quorum to hold. ठीक है. जब quorum नहीं होता है, adequate quorum is not there, then the ad hoc judges are appointed by the Supreme Court. Indian Constitution provides for appointment of ad hoc judges in Supreme Court. Collegium system for appointment of judges कब adopt किया गया था? It was in the year 1933. Third judge case में collegium system was founded. The Supreme Court Collegium comprises of the Chief Justice of India and a few senior judges for recommending appointee to the Supreme Court. The number of such senior judges who are part of this are 4 judges होते हैं, and then there is the Chief Justice of India. Total 5 members होते हैं collegium में. The minimum numbers of judge of Supreme Court required to hear any case involving the interpretation of Constitution. The constitutional bench is minimum of 5 members. The power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and state falls under an, अभी बताया मैंने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में 3 क्लॉज बताए थे ना, कि जब एक सेंटर एंड स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट और अदर स्टेट और 2 और मोर स्टेट्स अंडर आर्टिकल 131 आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के? स्पेसिफिक क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस. तो अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट्स. यस. अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं आता ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में. ये तो हमारा हाई कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है. तो सेकंड हम स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से. सेकंड हमने एलिमिनेट कर दिया. तो या तो हमारा आंसर सी है या हमारा डी है. लेट्स सी द अदर ऑप्शंस. अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, ये भी नहीं आता है. डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, ये तो हमने अभी पढ़ा है. तो 1 and 4 is the right answer. Now the second largest bench constituted by Supreme Court was in the date गोलकनाथ केस ऑफ 1960. इसमें हमारी 11 जज की बेंच थी. केशवानंदन भारती केस था ना 1973 का, इन विच द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड. इसमें लार्जेस्ट बेंच अभी तक बैठी है 13 मेंबर्स की. डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देखो अभी आ गया, केशवानंदन भारती केस 1973. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस में आया था? नन ऑफ द अबव, क्योंकि केशवानंदन भारती ऑप्शंस में नहीं है. इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर कितने होते हैं जजेस की? तो इट इज 5.
In which of the following cases Supreme Court held that the fundamental rights enables a man to chalk out its life in a manner he likes the best? This was the Golaknath versus the state of Punjab 1960 का केस है ये. Now identify the incorrect pair. Right to travel abroad. Right to travel abroad was not in the case of Bella Banerjee but in Menaka Gandhi case. मेनका गांधी केस. और ये अब्रॉड ट्रैवल करना आर्टिकल 21 में आता है. एंड राइट टू ट्रैवल विद इन द कंट्री इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(d). अब्रॉड वाला आर्टिकल 21 में आता है बट विद इन द कंट्री कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम. ठीक है. नाउ लेट्स सी दी अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग which article of the constitution deals with the appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with the constitutional cases? So I already told you कि article 131, 132 and 133. तो constitutional cases के उसमें 132 read with article 134. Now the next question is, all the cases regarding the interpretation of the constitution can be brought to the Supreme Court under its appellate jurisdiction. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो मैंने अभी जो बताया आपको 3 आर्टिकल्स थे उनके अंडर होता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच ऑफ देम इज करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओनली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओनली तो नहीं बट एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है. इट हैज ओनली ओरिजिनल एंड एपेलेट. इट हैज ओनली एडवाइजरी एंड एपेलेट. ये तीनों होते हैं. बताया था ना जुरिस्डिक्शन वाले उसमें एक्सप्लेनेशन में. डी हमारा राइट आंसर होगा. क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना. आर्टिकल 142 के अंदर में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होती है. पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट ये आर्टिकल 137 में आता है. करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है रिगार्डिंग पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर टू रिव्यू सच जजमेंट और ऑर्डर. नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है. द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. यस, करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. यस, दिस इज करेक्ट. 48 45 का हमारा ए इज द करेक्ट आंसर. जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? तो इट मीन्स दैट इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ ऑफ द स्टेट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर इनवैलिड इफ इट्स इन conflict with the constitution. The Constitution of India defines the basic terms structure in the terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. देखो, मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर कब प्रपोन्ड हुआ है. केशवानंदन भारती केस 1973. तो ये एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है. बेसिक स्ट्रक्चर इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा राइट मतलब गलत है. सेकंड इज द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड. ये गलत है. जुडिशियल रिव्यू नहीं, सॉरी, जुडिशियल रिव्यू की बात की है यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ी है. तो हाँ, जुडिशियल रिव्यू की बात की है. आर्टिकल 13 इज ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ as void and unconstitutional on the grounds of it abrogating any fundamental rights. That is why B is right. Judicial review का सिस्टम 2 कंट्रीज में प्रिवेलेंट है, दैट इज इंडिया प्लस यूएसए. डी हमारा राइट है. Under which article of the Constitution the courts have been prohibited from inquiring the proceedings of the Parliament? It is under Article 122. नोट्स में ऐड कर लेना ये कुछ आर्टिकल्स जो एग्जाम्स में पूछे गए. ठीक है, कभी भी ये पूछ सकते हैं वापस से. A Constitution Amendment Act can be declared as unconstitutional. अभी मैंने बताया था कब किया जा सकता है. Establishes a 3-tier federal setup in place of 2-tier. Removes the right of equality before the law and place it elsewhere. अब मेरे को बताओ, जो 3-tier फेडरल सेटअप है, जो राइट टू इक्वालिटी है, ये कहाँ मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट्स है.
आर्टिकल 13 मैंने अभी बताया क्या बोलता है कि कोई भी लॉ अगर किसी फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 है, अगर इसको आप फंडामेंटल राइट से उठा के कहीं और डाल दोगे, मान लो डीपीएसपी पे हमने डाल दिया, तो डीपीएसपी तो हमारा जस्टिसेबल नहीं है ना नेचर में, तो ऑटोमेटिकली ये अगर गवर्नमेंट ये प्रोविजन करती है तो इट वुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड एज वेल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। आर्टिकल 142 के अंदर में क्या पावर है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इतनी लंबे क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि 142 का क्या मतलब है। 143 में मैंने बताया आपको कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आती है। 142 याद करो, ऊपर एक क्वेश्चन आया था क्यूरेटिव पिटीशन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी फाइल्ड। जुडिशियल रिव्यू इज enjoyed by, it is enjoyed by supreme court as well as high court. Judicial review is based on the procedure established by law. Next is, who has the last authority to explain constitution? It is the Supreme Court. Who said judicial activism should not become judicial adventurism? So it was said by the Justice A.N. Anand. Who is the custodian of Indian Constitution? Supreme Court. Article 32 में रिट्स इशू करता है। Custodian of Indian Constitution, Supreme Court. Custodian of Indian Constitution, Supreme Court. Guardianship of Indian Constitution सेम है, सुप्रीम कोर्ट। assertion रीजन का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव jurisdiction रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज ऑफ सेंट्रल लॉ, गलत, मैंने बताया था आपको हाई कोर्ट के पास भी पावर है। तो ए स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। ए हमारा फॉल्स है बट आर इज ट्रू। Who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court on any question? So this is the President of India under Article 143. प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात की गई है? इट इज अंडर आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1। The power to enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India is vested with respect to any matter included in the union list rests with the parliament. सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कौन इनलार्ज कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है बाय पासिंग अ लॉ। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, इट इज बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर्स, नहीं, दो मैटर्स मैंने बताए थे, एक तो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और दूसरा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में इट इज नेसेसरी फॉर सुप्रीम कोर्ट टू गिव एडवाइस, बट इन केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस सुप्रीम कोर्ट कैन डिनाई, तो ऑल केसेस में तो नहीं होता है, ठीक है। फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस made to it under power of advisory jurisdiction, power given, opinion given by Supreme Court on the reference under advisory jurisdiction is not binding। correct statement है हमारा, binding नहीं होता है। not more than one reference can be made to the Supreme Court under power of jurisdiction, ये तो बेकार स्टेटमेंट है। 4 हमारा अपराइटली गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ से वी कैन डिड्यूस आवर आंसर, दैट इज 2 and 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। Now, let's see the next question. Constitution with reference to the Constitution of India, consider the following statement. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. गलत statement है। An amendment to the Constitution cannot be called upon to question. बिल्कुल क्वेश्चन पे कॉल किया जा सकता है। Constitutional amendment made under Article 368। अभी जम्मू एंड कश्मीर का एब्रोगेशन किया था ना आर्टिकल 370 का, तो सुप्रीम कोर्ट में केस तो चला उसके ऊपर। डी हमारा सही आंसर है। Advisory jurisdiction of Supreme Court of India implies that it may advise to the President on the issues or fact which are of public importance. Supreme Court of India tenders advice to the President on the matter or fact only if he seeks such advice। जब President पूछेंगे तभी, ऐसे नहीं। Who has the right under the Constitution to seek the opinion of the Supreme Court on question of law? It is the President।
Now, Supreme Court of India tenders advice to the President on a matter or fact on its initiative. इनिशिएटिव की तो बात ही नहीं है. जब सीख करेंगे एडवाइस को, यस, ओनली इफ द मैटर इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट. नो, जब वो एडवाइस सीख करेंगे ऑन लॉ ऑफ एनी पब्लिक इंपॉर्टेंस. और दूसरा क्या था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल. दैट इज वाई बी इज करेक्ट. कौन से आर्टिकल के अंदर? प्रेसिडेंट रेफरेंस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है 143 के अंदर. बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है? सबसे पहले 32 तो रिट्स है, ये तो बिल्कुल आएगा. रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है. 226 में रिट्स ऑफ हाई कोर्ट है, ये भी इज रिलेटेड टू हाई कोर्ट का रिट्स. ठीक है, 123 आएगा. 245 इज रिलेटेड टू यूनियन एंड स्टेट का रिलेशंस. दैट इज वाई ए हमारा राइट आंसर है. हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से एश्योर होते हैं? इट इज आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट कितने साल का होना चाहिए हाई कोर्ट का? आई ऑलरेडी टोल्ड यू 10 years. Who amongst the following recently appointed as Supreme Court judge was not earlier? ये उस टाइम का प्रेजेंट क्वेश्चन है, तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज ऑफ नाउ टुडे. Which of the following cases comes under the jurisdiction of High Court and Supreme Court? Dates issue होते हैं by the Supreme Court under Article 32 and by the High Court under Article 226. Not true about the power of Supreme Court. It has exclusive power. गलत, यही स्टेटमेंट हमारा नॉट करेक्ट है. हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है टू इशू डेट्स अंडर आर्टिकल 226. Who has the right to transfer any case anywhere in India? So it is the Supreme Court that has power. करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. अ पार्लियामेंट कैन नॉट इनलार्ज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. गलत, पार्लियामेंट इनलार्ज कर सकती है. द ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नहीं, सीएफआई पे चार्ज नहीं होते हैं. दीज आर हैंडल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. डी हमारा राइट आंसर है. जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर was the chief justice of India. No, he was not. And V.R. Krishnan Iyer is considered as one of the progenitors of the PIL. Yes, statement B is right. Chief Justice of India कौन थे when the PIL was introduced in Indian judiciary? ठीक है, बहुत वेग क्वेश्चन है. You can read the explanation. बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, बट अ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मेड इन 1973 अंडर द केशवानंदन भारती केस. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट. यस, जो भी डिसीजन लेता है हैव एविडेंशियरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट. कोर्ट ऑफ लॉ कौन है? दोनों, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर कोर्ट ऑफ लॉ. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. यस, द सुप्रीम कोर्ट कैन चेंज इट्स डिसीजन और जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट अपनी मीटिंग को होल्ड करता है दिल्ली में, बट क्या वो कहीं और उन मीटिंग को कर सकता है? हाँ, कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट. Which of the following is appointed as the fourth female judge of Supreme Court in 2010? वो तब का क्वेश्चन है. टुडे दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. PIL is a judicial initiative. PIL is public interest litigation. PIL कहाँ फाइल कर सकते हैं? हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी. PIL का कंसेप्ट किधर ओरिजिनेट हुआ था? इट इज ओरिजिनेटेड इन यूएसए. PIL कहाँ ओरिजिनेट हुआ? यूएसए. जुडिशियल एक्टिविज्म किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू PIL. Under which law it is prescribed that all proceeding in the Supreme Court of India shall be in English language? ठीक है, so it is mentioned in Article 348 of the Constitution. CBI is a caged parrot. किसके केस में कहा था? कोलगेट स्कैम में कहा था सुप्रीम कोर्ट में. दिस इज अ फेमस स्टेटमेंट दैट इज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. करेक्ट सीक्वेंस बोला है हमसे, तो एक बार इसको देख लेना. वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा. द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द गवर्नर. थैंक यू.